today we will do dual behavior of matter and radiation. Now first is the dual nature of electron. Electron has dual nature. It has particle nature as well as wave nature. De Broglie gave the concept of matter waves. Means that like light has dual character, it can behave as a particle as well as a wave. Similarly, जैसे लाइट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड इंटरफेरेंस. ये जो सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये उसको वेव नेचर प्रोवाइड करती हैं. और वाइल सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो लाइट की हैं जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दीज टू इफेक्ट्स प्रोवाइड पार्टिकल कैरेक्टर टू द लाइट. नाउ De Broglie was of the opinion that electron also has dual nature. इसका भी ड्यूअल नेचर है. इट पोजेसेस बोथ मैटर, मटेरियल मींस पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब इसकी भी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इट पोजेसेस वेव कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो एंड पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो. सो अकॉर्डिंग टू De Broglie, all material particles in motion possess wave-like characteristics. According to De Broglie, according to lambda is the wavelength. Wavelength हर एक जो particle है which possesses wave nature has wavelength. उसके साथ wavelength associated होती है. And let us assume that there is a particle जिसका mass m है, lambda उसकी wavelength है, and it is moving with velocity v. So how what is the formula of wavelength? Lambda is equal to h upon mv or h upon p. mv mass into velocity, that is equal to momentum p. That is why h upon p. Now next we will derive the De Broglie relationship. We will derive the De Broglie relationship. So we know that energy that is equal to h into nu, h into frequency. H is Planck's constant and nu is the frequency here. And also according to theory of relativity, this is Planck's relation of energy जो प्लैंक ने दिया था, h into nu, and this is according to theory of relativity which was given by Einstein, that E is equal to mc square, where c is the velocity of light. So if we compare, when you know what happens when left hand is same, right hand is bound to be same. So if we compare these two equations, first and second, so h nu that will be equal to mc square. Now nu into lambda, frequency, if you multiply frequency with lambda, that is wavelength, it is equal to velocity. और nu जो है, और if we cross multiply it, nu that will come out to be c upon lambda. c is velocity upon lambda, wavelength. So if अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 4 में जो हमने न्यू की वैल्यू निकाली है इसको पुट करें तो हमें ये वाला रिलेशन अब मिल जाएगा. h c upon lambda is the value of nu, that is equal to mc square. So from here we can find out h upon lambda, c and c, one of the c will cancel out. So h upon lambda that is equal to mc, or lambda is equal to h upon mc, or lambda that is equal to h upon mv. This is the De Broglie equation or De Broglie relationship, and this is lambda is equal to h upon mv or h upon p, where p is the momentum. Then this is the De Broglie relation which we have find out. Now there is another justification of dual nature of electrons. How do हम कैसे justify करते हैं dual nature electrons की? तो particle nature और wave nature को. So particle nature, particles have definite mass, energy, momentum, charge, and so do electrons. जो mass, energy, momentum and charge, the characteristics, all these characteristics they are possessed by your electron. Electron की ये सब characteristics होते हैं. When an electron strikes zinc sulfide screen, it produces a spot of light known as scintillation.
सी whenever you bombard, जब भी आप इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करते हो जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, तो वो एक स्किंटिलेशन, मतलब एक चमक सी, स्किंटिलेशन इज अ स्पार्क, लाइक अ स्पार्क प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली इफ इट हैज द पार्टिकल नेचर। वो स्किंटिलेशन तभी प्रोड्यूस होगी अगर इसकी एक पार्टिकल नेचर है। तो सेकेंड इज वेव नेचर। नाउ देर इज वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, दैट इज diffraction, and diffraction is the characteristic which is shown by electrons also। अगर आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पढ़ें तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। वेव का एक नेचर होता है जिसको डिफ्रैक्शन कहा जाता है। इट इज the interference between waves caused by object in the path and leads to light and dark fringes। इसकी वजह से जो हमारा एक्स-रे स्ट्रक्चर आता है उसमें लाइट और डार्क कलर की फ्रिंजेस आती हैं। फ्रिंजेस का मतलब है लाइंस आती हैं, तो उस चीज को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये जनरली जो वेव्स होती हैं वो दिखाती हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को सब्जेक्ट करें एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के, तो वो भी आपको डिफ्रैक्शन दिखाती है। तो इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर भी है, इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिकल नेचर भी है और इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर भी है, एंड दीज आर द प्रूफ्स फॉर इट। सो next we have very important principle which is, you must have heard about it, Hinsberg's uncertainty principle। आपने ये 12th स्टैंडर्ड में जरूर पढ़ा होगा, Hinsberg's uncertainty principle। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी और मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट और एग्जैक्ट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। इसका मतलब ये है कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इकट्ठे, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का हम एक साथ पोजीशन और उसका मोमेंटम नहीं बता सकते। इट इज नॉट पॉसिबल। या तो हम उसकी पोजीशन बताएंगे या तो हम उसका मोमेंटम, दोनों में से हम एक ही चीज बता सकते हैं एट अ टाइम। इट इज नॉट पॉसिबल टू show both the characteristics। delta x is uncertainty in position and delta p represents uncertainty in momentum। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 जो means minimum certainty is always equal to h upon 4 it means that this is the मल्टीपल फॉर सर्टेनिटी के लिए है। तो कम से कम सर्टेनिटी की वैल्यू जो है वो h अपॉन 4 है, उससे कम नहीं होगी, उससे ज्यादा हो सकती है पर उससे कम नहीं होगी। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय दिस ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। वेयर एज डेल्टा एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल्टा पी का मतलब है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अगर आपकी पोजीशन का आपको पता नहीं चल रहा है तो इसका मतलब आपको मोमेंटम का पता चल जाएगा। अगर आपकी डेल्टा एक्स की वैल्यू कम है देन डेल्टा पी विल बी हाई, मीन्स यू विल नो द मोमेंटम। एंड if your delta p is less then it means delta x is high, means you can find out the value of delta x। so at a time हम सिर्फ एक चीज का पता लगा सकते हैं, either position और momentum। मोमेंटम में भी हम किसका पता लगाते हैं? P इज इक्वल टू, यू नो दैट P दैट इज इक्वल टू mv। तो मास जो है इलेक्ट्रॉन का, वो तो आपका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का दैट इज अ फिक्स्ड, उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। तो बाय हम इसमें किसकी वेलोसिटी, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रॉन की? दैट इज वेलोसिटी। हम वेलोसिटी, तो इसका मतलब ये है इन नटशेल कि आप एक ही टाइम में पोजीशन और वेलोसिटी किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पता नहीं लगा सकते। बट एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो प्रिंसिपल है ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई नहीं होता है। इट इज ओनली एप्लीकेबल इन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आस्क फॉर एरोप्लेन जो है उसकी आप पोजीशन का भी पता लगा सकते हैं और मोमेंटम का भी पता लगा सकते हैं साइमल्टेनियसली, दैट इज पॉसिबल। सो दिस जो हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन।
Thank you.